Hare Krishna. Hare Krishna, children. Welcome. Hare Krishna. Hare Krishna, children. How are you? Hare Krishna, Anna, हरे कृष्णा Anugraha, माता Jai. जी। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता माता जी प्रणाम। कृष्णा माता जी। माता जी हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। Hare Krishna. How is your हरे कृष्णा vacation going on? हरे कृष्णा परीक्षित। माते हरे कृष्णा माता जी। How many of you know me? Raise your hands. Do like this. How many of you know me? Do like this. Oh, so many are there. हरे कृष्णा। Very nice. हरे कृष्णा। Krish, हरे कृष्णा Karamji, माता जी। Hare Krishna. How are हरे you? कृष्णा माता जी। आई एम गुड। हाउ आर यू? Yeah, I was missing you. I was missing everybody actually. Harsh, Harshvardhan. ले चालू Parikshit. हुआ इसको ले जा। Okay, so we are in exciting journey for 7 days. So 7 days we will all be together for 1 hour at least. 7 दिन के लिए हम सब लोग 1 घंटे के लिए साथ में रहेंगे। रहेंगे आप सब साथ में? 1 घंटे। यस माता जी। यस माता जी। यस माता जी। Yes, Master मीनाल ji. ले जा ना बेटा। We're excited to know the यस story. माता जी। यस माता जी। Very हरे good. कृष्णा माता जी। We are going to do so many activities, games, quizzes, and there are exciting prizes also. हरे कृष्णा। Prizes for the winners. ये कौन सा यही माता क्लास जी? में पाँच सेशन रोज होता है तो। ये 7 दिन का भागवत कराएंगे। परीक्षित। चीकू बेरी। कौन सा नहीं? मम्मी ये तो लड़कों का है। जो को बोल रहा वो ना है मेरा तो। अरे दे दिया चिकू बेरी। मैंने सुनना है तो तुम सुनती रहो ना। Okay, so we'll start with the Mangala Charan. We'll start our session with the Mangala Charan. Okay? Everybody fold your hands. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे जानन् कृष्णा माता जी। चक्षुरुन्मिलितं येन हरे कृष्णा माता जी। Mangala Charan. How many of you know Mangala Charan? माताजी में हार्दिक। Very nice. Most of them knows. Okay, you recite. I will share the screen, and by seeing the screen, everybody recite together. હું એકલો છું.
see the screen? શું કરે છે આ બધું? What Yes. see me? Everybody hold your hands like this. सब लोग हाथ छोड़िए. Yes. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च निरूपं साग्र रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. Everybody raise your hands. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. Okay, so we'll start with the session with some do you know questions, because we are going to learn Srimad Bhagavatam. What we are going to learn? Srimad Bhagavatam. So first I will tell you few questions. Let's see how many of you know the answers. Okay, those who know the answer, Shlok, keep your hands down. Everybody keep your hands down first. Everybody keep your hands down. Yes. And then those who know the answer, they will do like this. Raise the hands. The electronic hand, not the physical hand. They will raise the electronic hand. Apna electronic hand. Krish, keep your hand down first. Everybody keep your hand. Krish, keep your hand down. Okay. First question. Okay, we'll share the slide. Everybody see the screen. Everybody see the screen. Everybody switch on the camera. Those who have switches, everybody switch on the camera. Sit straight. Everybody switch on the camera. Sit straight in front of the screen. Can you see the screen? What's up, Abhilash? Can you see the screen? Do like this. Yes. Okay. So first thing, what is the meaning of Srimad Bhagavatam? What is the meaning of Srimad Bhagavatam? The word is there, Srimad Bhagavatam. See, everybody should be attentive in the class, because at the end of the class, we are going to have a quiz. We are going to play a quiz.
and there will be winners in the quiz. So all of you listen attentively. आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जो भी पूरे क्लास में सुनेंगे वो ध्यान से सुनेंगे. क्लास के लास्ट में क्विज होगा, आप सबको पार्टिसिपेट करना है. Okay, the first thing, what is the meaning of Srimad Bhagavatam? The Srimad means endowed with opulences. Srimad, ऐश्वर्यवान, सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण. और भागवतम means related to भगवान श्री कृष्ण. What is the meaning of Bhagavatam? Bhagavatam means related to Bhagwan Shri Krishna. So there are two types of Bhagavat. What are the two types of Bhagavat? Who will tell? What are the two types of Bhagavat? Okay, Karamjeet, what are the two types of Bhagavat? Can you unmute yourself? You cannot unmute? Okay, Karamjeet, what are the two types of Bhagavat? Mataji, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. What are the... Yes? Aradhya. Aradhya, what are the two types of Bhagavat? Mataji, first type of Bhagavad Gita that Lord Krishna tells us Bhagavad Gita, first Bhagavad Gita, and then second Bhagavad Gita is that Srila Prabhupada writes. Can you please speak loudly? I cannot hear you properly. Mataji, two types of Bhagavad Gita. First type of Bhagavad Gita is Lord Krishna tell us. Second type of Bhagavad Gita is that Srila Prabhupada write. Okay. Okay, Brihant. Brihant, what are the two types of Bhagavat? The first Bhagavat is the book Bhagavat, and the second is the devotee Bhagavat. Yes. The two types of Bhagavat is, one is the book Bhagavat, that is Srimad Bhagavatam. And the other type of Bhagavat is the person Bhagavat. Give one example of person Bhagavat. Anybody give example of a person Bhagavat? Bhakti. Give an example of a person Bhagavat. Mataji, Narad Muni. Yes, very good. Any other? Shivam. Mataji, Srila Prabhupada. Yes, very good. Prabhupada. Sukdev Goswami. These are all person Bhagavat. Yes. Chaitanya Mahaprabhu. Parikshit Maharaj, Dhruv Maharaj. Srila Prabhupada. Dhruv Maharaj. प्रहलाद महाराज Okay. महाराज Okay, enough. So there are two types. There are two types of Bhagavat. One is the book Bhagavat. Aradhya, listen. One is the book Bhagavat and the other is the person Bhagavat. Everybody mute themselves. Lot of noise is coming. Now next question. Why to read Srimad Bhagavatam? Why we are here to read Srimad Bhagavatam? Why we are here to read Srimad Bhagavatam? Who will tell? Why we are here to read Srimad Bhagavatam? Why we are not reading any novel or any other book? Why we are here to read Srimad Bhagavatam? क्या हो गया नॉर्मल की बात कर रहे हैं
Okay, Atharva. Why we are here to read Srimad Bhagavatam? Why we all are present to read Srimad Bhagavatam? Why we are not reading the Mataji, scripture? because it's Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is a beautiful story of Lord Krishna. It's a beautiful. Story of Lord Krishna. Yes, very good. Haripriya. Why we are reading Srimad Bhagavatam, not other novel or any other book? Right now, Hare Krishna Mataji, right now we are in this material world and we have to go back to Godhead. So, to go back to Godhead, we have to know Krishna and do his bhakti. So, for that, we have to read Srimad Bhagavatam. Yes, very good. We have to know Krishna. We have to go out of this material world. Anybody else? Okay, Nikunj. Nikunj. Speak loudly, speak loudly. Unmute yourself first. Unmute yourself. Mataji, Yes. we read Srimad Bhagavatam because we connect our soul to Supreme Soul. Yes. Okay. Hardik Prasad. Why? What is the need to read Srimad Bhagavatam? Mataji, Srimad Bhagavatam is Krishna itself. Yes. What is the need? Mataji, We may are I? reading Srimad Bhagavatam because are we this body or spirit soul? We are spirit souls. We are not this Spirit body. हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा का we are not this body but spirit souls, and the constitutional position of the soul is to serve Krishna. So if we have to serve Krishna, we should know about Krishna. अगर भगवान की सेवा करनी है तो भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, और भगवान के बारे में जानना है तो उनके जहां उनके बारे में लिखा है उसे पढ़ना पड़ेगा. Okay, so we read Srimad Bhagavatam to know about Krishna and his devotees and serve him nicely. हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना है ताकि हम भगवान के बारे में जान सके और टू सर्व हिम नाइसली. ओके, टू नो अबाउट द लॉर्ड. किसी के बारे में जानना है तो किसी के बारे में जो पुस्तक लिखी है उसको पढ़ना पड़ेगा. पढ़ेंगे जानेंगे तभी तो उनकी सेवा अच्छे से कर पाएंगे. ओके, to know about the Lord and his devotees and to serve him nicely. That's why we read Srimad Bhagavatam. Okay, who wrote Srimad Bhagavatam? Who wrote Srimad Bhagavatam? Raise your hands. Raise your hands. Raise your hands. No, not like this. Raise your hands. Who wrote Srimad Bhagavatam? Electronic hand. Mataji. Raise your hand. No, I will say the name. Ansh. Ansh, who wrote Srimad Bhagavatam? Ganesh ji, Mataji. Nobody knows who wrote Srimad Bhagavatam? Mataji, I know. Who wrote Srimad Bhagavatam? Mataji. Srimad Bhagavatam Mataji. किसने लिखी है? Mataji, Vyasdev. Raise your hand. Mataji, Vyasdev. Yes, no. Mataji, Vyasdev. Yes, Vyasadev. Vyasadev wrote Srimad Bhagavatam. And what else Vyasadev wrote? Vyasadev ने और क्या लिखा? Srimad Bhagavatam. 18 Puranas. व्यासदेव ने और क्या लिखा? श्रीमद् भागवतम लिखा, और क्या लिखा दूसरा? 4 वेदों. यस, राजवीर. राजवीर. All Puranas. 18 literatures. Yes, all the Puranas, Upanishad, Mahabharat. Vyasdev also wrote Mahabharat. Did Vyasdev wrote Ramayana also? No. Yeah, Vyasdev ने रामायण लिखा है? No.
Yes, Vyasdev didn't write Ramayana. Who wrote Ramayana? Valmiki. Valmiki wrote Ramayana. Vyasdev wrote Mahabharata, Upanishads, Puranas, Vedas, and Valmiki wrote Ramayana. Okay. Okay, how many chapters and verses are there in Srimad Bhagavatam? Who will tell? How many chapters and verses are there in Srimad Bhagavatam? 18 chapters. See the option. 18 chapters. See the option. 18 chapters. 18 chapters. Raise your hands. Mataji, Raise your hands. 18 chapters. Okay, Rajesh Kumar Garwal. 335. Yes, 335 chapters. And how many verses are there? How many verses are there? And how many verses are there? 18,000 verses. 18,000 How many verses are there. Mataji, 18,000 verses. verses are there. Mataji, option 3. Yes, option 3. 335 chapters and 18,000 verses. Verses. Okay, next. Okay. Who narrated Srimad Bhagavatam to whom and where? Who narrated Srimad Bhagavatam? किसने Srimad Bhagavatam किसको सुनाई थी? And where? Raise your hands. Mataji, may I? Those who know, raise your hands. Okay, hate. Mataji, Who narrated Srimad Bhagavatam? Sud हाँ yes Mataji, Sud Goswami to the Naimisharanya Rishis. No. Who narrated Srimad Bhagavatam to whom and where? Originally who narrated? सबसे पहले किसने narrate की Srimad Bhagavatam? Goswami to Parikshit Maharaj on the bank of Ganga. Yes, very good. Sukhdev Goswami to Parikshit Maharaj on the bank of the Ganges. Everybody remember all these things? I will ask you at the end of the class. Yes. Okay, how many cantos are there in Srimad Bhagavatam? 2. What's up? So how Mataji, many 18 cantos are there? cantos. 18 Huh? There are cantos. 18 cantos. There are 18 Third option. 12. How many 18 cantos are there? cantos, Parikshit Mataji. Chaudhary. 18 cantos, Mataji. 18 cantos. Maji, 18 cantos. First canto. Mataji, there are 12 cantos. Mataji, there are 12 cantos. 12 Mataji, cantos are there. third option. Please. 18 cantos. 12 skans. 12 cantos are there. How many cantos are there? 12 Mataji, cantos are there. Please, Huh? बराबर. 12 cantos are there. Okay. Okay. What is the difference? What is the difference between Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam? Mataji, may I? What is the difference between Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam? Mataji, may I? Yes. Yes, Haripriya. Mataji, may I? What is the difference between Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam? Mataji, may I? Unmute yourself. Haripriya, unmute yourself. Mataji, may I? Haripriya, unmute yourself first. What is the difference between Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam? माता जी भगवत गीता जो कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए थे भगवत गीता में वो सब है और जो श्रीमद् भागवतम है वो जो कृष्ण लीला सारी है हमारे उनकी तो उसमें भागवतम में सब कुछ है मैम. Okay. Can I? Wait. माताजी ऐसे. Parikshit Chaudhary.
Unmute yourself. माता जी भगवत गीता में उपदेश है और श्रीमद् भागवतम स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण Yes, very good. Very good. Correct answer. Bhagavad Gita says the philosophy about the body and the soul, but Srimad Bhagavatam tells the philosophy through stories. स्टोरी भगवत गीता में फिलोसफी दी है, इसमें स्टोरी है, भगवत गीता में स्टोरी है? नो नो स्टोरी। भगवत गीता में स्टोरीज है? कौन बोल रहा है स्टोरीज है? भगवत नो गीता में स्टोरीज, सिर्फ फिलोसफी है। और श्रीमद् भागवतम में स्टोरीज, फिलोसफी समझाई है स्टोरी के थ्रू। ओके ओके, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ श्रीमद् भागवतम? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ श्रीमद् भागवतम? एनीबॉडी नोस? Can I tell Mataji? What is the another name of Srimad Bhagavatam? Yes, Can I Brihan. tell Mataji? Amal Puran. What is the another name of Srimad Bhagavatam? Amal Yes, Puran. Amala Puran. Any other name? Huh? What is the another name? गलितम फलम Amala Puran. And what another name? Shivam. Bhagavad. भागवत पुराण. Bhagavad Puran. And another name? Any other name? Any other name? श्रीमद् भागवत Bhagavad Puran, Amal Puran. Bhagavad Katha. No. श्रीमद् भागवत Any other name of Srimad Bhagavatam? महापुराण. Paramhamsa. Huh? महापुराण. Paramhamsa Samhita. What is another name of Srimad Bhagavatam? Paramhamsa Samhita. It's a scripture for the Paramhamsas. Paramhamsas means those who are pure devotees of the Lord. Those who rejoices in Krishna's names. They are called Paramhamsas. Those who rejoice in Krishna's name. जिनको भगवान का नाम जप करते समय एक्सटेसी होती है. They are Paramhamsas. So another name of Srimad Bhagavatam is Paramhamsa Samhita. परमहंस संहिता. Paramahamsa. Okay. So now now everybody you can see the picture. See the picture of the tree, the parrot and the fruit. Everybody can see the picture of the parrot, tree and the fruit. Okay. So what is this is the analogy of Srimad Bhagavatam. See this carefully. The tree is the Ved. Tree क्या है? Tree Vedas हैं. और ट्री का जो राइपन फ्रूट है, जो परिपक्व जो फल है, राइपन फ्रूट है, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम. दिस इज अ मैंगो ट्री. ट्री इज वेदास और जो फ्रूट है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम. एंड हु इज ईटिंग दैट फ्रूट? द पैरट इज ईटिंग द फ्रूट एंड द पैरट इज सुखदेव गोस्वामी. एंड बिकॉज इट्स द फ्रूट इज ईटन बाय द पैरट, तो क्या हो जाएगा? बिकॉज द फ्रूट इज ईटन बाय द पैरट, द फ्रूट हैज बिकम मोर टेस्टी, मोर डिलीशियस. क्योंकि तोता ने वो फल को खाया है, इसीलिए वो फल ज्यादा मीठा हो गया है. तो ये एक पेड़ है. पेड़ क्या है? पेड़ क्या बता रहे हैं? पेड़ है वेद. और पेड़ का जो परिपक्व जो फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम. इसीलिए श्रीमद् भागवतम इतना स्वीट है. और क्योंकि एक तोते ने, दैट मीन्स सुखदेव गोस्वामी के मुख से वो श्रीमद् भागवतम निकला है, इसीलिए वो ज्यादा टेस्टी हो गया है, ज्यादा मधुर हो गया है. Okay, see the picture. Can you see? Everybody can see the picture. The tree is the Vedas and the fruit is the mango fruit is the Srimad Bhagavatam and the parrot is Sukhdev Goswami. Which sloka it says? Anybody know the sloka of this? It comes in Srimad Bhagavatam. Anybody know? Yes, say. Yes, say the sloka. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखारद्रवसंयुतं पिबतं भागवमतरसमालयं मुहुरहो रसिका भावुका.
Very good, very good. Clap for Vatsav. Everybody clap for Vatsav. Very good, excellent. निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः. So that slok says that Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of all the Vedic literature. सभी वेदों का जो परिपक्व जो फल होता है वो है श्रीमद् भागवतम. और क्योंकि उसको सुख मुखात सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है. और सुखदेव गोस्वामी कौन है? यहाँ पे देखो कौन है सुखदेव गोस्वामी. पैरट है ना, पैरट. तो पैरट के मुख से निकला है, इसीलिए वो बहुत स्वीट हो गया और भी ज्यादा मधुर हो गया है. ओके, yeah, this is the verse. Everybody recite this verse. Everybody recite the verse. निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः. Okay, so this is the verse. Okay, now the Srimad Bhagavatam has how many cantos? See the picture. Srimad Bhagavatam has how many cantos? 12 cantos. कितने कैंटो है श्रीमद् भागवतम में? 12. अभी जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान से अभिन्न है. श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई फर्क नहीं है. श्रीमद् भागवतम इज सेम एज कृष्णा हिमसेल्फ. Okay, so there are 12 cantos. तो फर्स्ट 2 कैंटो इज कंपेयर टू कृष्णास लोटस फीट. देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए, जो फर्स्ट 2 कैंटोस है श्रीमद् भागवतम की वो क्या है? कृष्णास लोटस फीट. जो थर्ड और फोर्थ कैंटो है वो क्या है? ये ऐसे देखने से दिखाई देता है, उसको तो दिख रहा है. जो थर्ड और फोर्थ कैंटो है वो क्या है? थाइज, कृष्णास थाइज. फिफ्थ कैंटो इज नेवल, कृष्णास नेवल. सिक्स्थ कैंटो इज, write it down, everybody write it down whatever I am saying. I will ask you at the end of the class. There will be quiz at the end of the class. Everybody write down. The first 2 cantos is Krishna's lotus feet. The third and fourth canto is thighs, Krishna's thigh. Fifth canto is Krishna's navel, Krishna's navel. Sixth canto is Krishna's chest. Sixth canto is Krishna's chest. Seventh and eighth canto is Krishna's arms. Seventh and eighth canto is Krishna's arms. Writing? Written? Ninth canto is Krishna's throat. Ninth canto is Krishna's throat. 10th canto is Krishna's beautiful face. 10th canto is Krishna's beautiful face. 11th canto is Krishna's forehead. 11th canto is Krishna's forehead. And 12th canto is Krishna's head. 12th canto is Krishna's head. Okay, understood? Everybody got? Hardik Prasad got?
Do like this. If you got, do like this. Laksh. Got? Lakshmi. Done? First and two cantos, Krishna's lotus feet. Third and fourth canto, Krishna's thighs. Fifth canto, Krishna's navel. Sixth canto, Krishna's chest. Seventh and eighth canto, Krishna's arms. Ninth canto, Krishna's throat. 10th canto, Krishna's beautiful face. 11th canto, Krishna's forehead. And 12th canto is Krishna's head. Understood? Jayansh. Shiva. Yes, Madhuri. Very good. Krishna. Very good. Who did all these things? Remove. Who is doing something on the screen? Remove them. Remove. आवाज होगा आवाज हम लोगों की आवाज का है आवाज हम्म? कोई हमारे क्लास का नहीं चाहिए मुझे ना ये बैकग्राउंड लगा है बैकग्राउंड है मुझे याद बता आपको नहीं हो तो बैकग्राउंड और अगर हो तो शर्त लगाई 1000 की शर्त क्यों मैं भी लगा छोड़ दे अरे होगा क्लास ज्वाइन करके बैठी है कोई नहीं मैं हटाऊं Okay, so now we will hear one story of the glories of Srimad Bhagavatam from Padma Puran. Okay, एक स्टोरी सुनेंगे पद्म पुराण से. तो पद्म पुराण में एक ब्राह्मण की कथा आती है. ब्राह्मण का क्या नाम था? आत्मदेव. आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था जो रहता था. तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटका में आती है, साउथ में रहती है, तुंगभद्रा रिवर. ओके, तुंगभद्रा रिवर के पास एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था. वो बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण था. सारे काम अपने अच्छे से करता था. सुबह भगवान का नाम जप करता था, अपना कार्य अच्छे से करता था, स्क्रिप्चर्स पढ़ता था, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ता था, सब कुछ बहुत अच्छे से करता था. उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली. उसकी पत्नी का क्या नाम था? धुंधुली. वो धुंधुली जो थी उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था. वो बहुत अच्छी दिखती थी, अच्छे परिवार से आई थी, पर वो बहुत ही श्रूड थी, कनिंग थी. उसका दिमाग बहुत अलग तरह से चलता था. उसमें बहुत कपटी थी, बदमाश थी. वो हमेशा दूसरों के बारे में खराब सोचती थी और उसके कभी भगवान का नाम जप नहीं करती थी. बहुत गुस्से वाली थी. इस प्रकार से जो आत्मादेव थे, उसकी जो पत्नी थी धुंधुली, बहुत ही
खराब थी, वो अच्छे परिवार से आई थी पर फिर भी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो अभी इससे क्या पता चलता है कि कोई भी अच्छे परिवार से हो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही होगा। कोई अच्छे परिवार से तो इसका मतलब यानी कि अच्छा ही होगा, उसे खुद अच्छा बनना पड़ेगा, उसको अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छे संस्कार लेने पड़ेंगे, उसको अपने माता पिता से अच्छी बातें सीखनी पड़ेगी, तब वो अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं कि बस अच्छे परिवार से जन्म ले लिया तो अच्छा बन गया। ठीक है, जो तो धुंधली थी, आत्मदेव की जो पत्नी थी, वो बहुत ही खराब थी। वो अपना वो बहुत गुस्सा करती रहती थी, झगड़ा करती रहती थी, और बहुत श्रूड थी, कनिंग थी। ठीक है, तो आत्मदेव तो ऐसे तो खुश रहता था, पर उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी, वो अच्छा था, उसके पास खूब पैसा था, अपना घर था, सब कुछ अच्छा था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए आत्मदेव बहुत दुखी रहता था कि अरे मेरी कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं। तो एक बार ऐसे ही जंगल में घूमता घूमता आत्मदेव एक ऋषि को मिला। देख रहे हैं ना पिक्चर में, ये आत्मदेव और एक ऋषि, ये सेज है। ठीक है, तो आत्मदेव एक ऋषि से मिला, और फिर ऋषि ने आत्मदेव से पूछा कि आप इतना दुखी क्यों दिख रहे हो, आप तो इतने अच्छे ब्राह्मण हो, भगवान का नाम जप करते हो, फिर आप दुखी क्यों हो। तो आत्मदेव ने ऋषि से कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन है, पैसा है, नाम है, मेरा अच्छा पोजीशन है, सोसाइटी सब कुछ है, पर मेरे संतान नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। तो ऋषि ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर भगवान ने आपको संतान नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके भाग्य में संतान होगी ही नहीं। फिर ऋषि ने उसकी एस्ट्रोलॉजी देखी, ज्योतिष देखा, उसमें दिखा रहा था कि उसकी कोई संतान, 7 जन्म तो उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो फिर ऋषि ने आत्मदेव से कहा कि भगवान ने आपको संतान नहीं दी, कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम जप करो, ज्यादा भक्ति करो। पर आत्मदेव खुश नहीं था। आत्मदेव ने बोला कि नहीं, मैं तो संतान चाहिए ही, मुझे तो संतान चाहिए, आप कुछ भी करो मुझे संतान दो। तब ऋषि से हट करने पर ऋषि ने आत्मदेव को एक एप्पल दिए। देखा, ऋषि ने को एक एप्पल दिया और कहा कि ये एप्पल लेकर जाओ और ये एप्पल अपनी पत्नी को खिला देना, और जब ये तुम्हारी पत्नी ये खाएगी उसके बाद उसे संतान प्राप्त होगा। ऐसे करके ऋषि ने आत्मदेव को एप्पल दे दिया। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, वो फटाफट एप्पल लेकर दौड़ा अपनी पत्नी को देने के लिए। देखे तो उसके बाद आत्मदेव ने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी जो थी ना, उसका क्या नाम था, धुंधुली, ये धुंधुली है, धुंधुली। तो धुंधुली को वो एप्पल दिया, और धुंधली ने एप्पल ले लिया, और आत्मदेव ने धुंधली से कहा कि तुम ये एप्पल खाओ। और ऋषि ने एक बात और कही थी आत्मदेव से कि अपनी पत्नी से कहना कि ये एप्पल खाने के बाद वो कभी किसी से झूठ ना बोले, कभी गुस्सा ना करे, अपना व्यवहार एकदम सात्विक रखे, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करे। इस प्रकार से तुम अपनी पत्नी को कहना। तो इस प्रकार से आत्मदेव ने धुंधली का कहा कि तुम ये एप्पल खाओ, और ऋषि ने कहा है कि तुम गुस्सा मत करो, और तुम एकदम सात्विक भावना से रहो, और सबको अच्छे से सबके साथ अच्छे से बर्ताव करो। तो ये सब जब धुंधली ने सुना, तो धुंधली ने कहा ठीक है ठीक है, ये एप्पल मुझे दे दीजिए, मैं कल सुबह ये एप्पल खा लूंगी। और फिर आत्मदेव चले गए वहां से। पर धुंधली तो बहुत श्रूड लेडी थी, वो तो क्या बोलते हैं, बहुत धूर्त थी, एकदम चालाक थी, बहुत का दिमाग अच्छा नहीं चलता था, बहुत कनिंग थी। ठीक है, तो धुंधली ने सोचा कि अरे अगर मैं ये एप्पल खाऊंगी तो मुझे तो संतान पैदा करना पड़ेगा। अगर मैं संतान जब अगर मेरे पेट में संतान आ गई, मेरे पेट में बच्चा आ गया, तो मेरा तो शरीर बहुत मोटा हो जाएगा, मेरी तो सुंदरता चली जाएगी, मैं तो हिल ही नहीं पाऊंगी। अगर मेरे घर में कोई चोर वगैरह आ गए मेरा सामान लेने के लिए, तो मैं तो उसको भगा ही नहीं पाऊंगी। मेरे कोई रिश्तेदार आके मेरे घर में बैठ जाएंगे, तो मुझे तो सोए रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत चीजें सोचने लगी कि अरे मैं तो बच्चा नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो मोटी हो जाऊंगी, मैं तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से धुंधली ने सोचा कि मैं ये एप्पल नहीं खाऊंगी। तो ये सोचकर वो अपनी बहन के पास गई। देखो आप फोटो में, ये पिक्चर में देखो,
धुंधुली किसके पास गई? अपनी बहन के पास, अपने सजेशन लेने के लिए, क्या करूं, ये एप्पल जो है वो मेरे पति लेकर आए और मैं ये एप्पल नहीं खाना चाहती हूँ। तो उसकी बहन ने कहा कि ठीक है। ऐसे उसकी जो बहन थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चा था, उसके संतान थी पेट में। तो उसकी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, जब ये बच्चा, मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं तुम्हें वो बच्चा दे दूंगी, और तुम झूठ मूठ कह दो अपने पति को जाके कि मैंने एप्पल खा लिया। और फिर वो दोनों ने क्या किया, उस एप्पल को, उनके घर में एक गाय थी, कौन थी? गाय। तो वो एप्पल जाके गाय को खिला दिया। ठीक है। तो कुछ समय बाद जो उसकी जो बहन थी उसके बच्चा हुआ। ठीक है। तो तुरंत वो बच्चा लाके किसको दे दी? धुंधुली को दे दी कि जाओ ये बच्चा ले लो और जाके अपने पति को दिखा देना कि ये तुम्हारा बच्चा है। तो इस प्रकार से धुंधुली ने, उसकी धुंधुली की बहन ने वो बच्चा लाकर धुंधुली को दे दिया। तो धुंधुली ने वो बच्चा लेकर किसको दिखा दिया? आत्मदेव को, कि देखो ये हमारी संतान है। और फिर गाय को, जो जो गाय थी जिसको एप्पल खिलाया था, तो गाय ने भी एक संतान दी, और गाय ने एक मनुष्य जैसी संतान दी। और और स्पेशल क्या था कि गाय ने जो संतान दी थी, तो उसके दो गाय की तरह सींग थे। वो था तो मनुष्य, पर उसके दो गाय की तरह सींग हो गए। इसीलिए आत्मदेव ने उसका क्या नाम रख दिया? गोकर्ण। जिसके कर्ण, कर्ण मतलब कान, कान जिसके कान, कान जिसके कान गाय जैसे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? गोकर्ण। तो अभी जैसे जैसे दोनों संतान बड़ी होने लगी, तो वो जो जो धुंधुली जिसको बड़ा कर रही थी, जो उसकी बहन की जो संतान थी, उसका नाम रखा धुंधुकारी। उसका क्या नाम रखा? धुंधुकारी। और जो गाय के जो संतान हुई थी उसका क्या नाम रखा? गोकर्ण, क्योंकि इसके जो कान थे वो गाय की तरह बहुत बड़े थे। ठीक है। तो दोनों बड़े होने लगे। अभी स्वभाव से धुंधुकारी बहुत ही बदमाश, दुष्ट, और उसका सभी चरित्र खराब था। बचपन से ही झूठ बोलना, किसी को मारना, धक्के मारना और खराब शब्द यूज करना, ये सारे गंदे क्वालिटीज धुंधुकारी के अंदर थे। और जो गोकर्ण था वो बचपन से ही बहुत अच्छा बच्चा था। वो अपने पिता के साथ भगवान का नाम जप करता, मंदिर जाता, भक्तों का संग करता, मंदिर में सेवा करता। इस प्रकार से गोकर्ण बचपन से ही बहुत अच्छा था। तो जैसे जैसे धुंधुकारी बड़ा होने लगा, तो धुंधुकारी की सारी खराब आदतें होने लगी। पराई स्त्रियों का संग करना, स्त्रियों के साथ खराब खराब बातें करना, इस प्रकार से धुंधुकारी बड़ा हुआ। अभी जैसे जैसे धुंधुकारी बड़ा हुआ, तो उसको अपने सब भोग विलास करने के लिए पैसा चाहिए, धुंधुकारी को पैसा चाहिए। तो उसने अपने पिता आत्मदेव को परेशान करना शुरू किया। जैसे जैसे धुंधुकारी ने ज्यादा से ज्यादा अपने पिता से पैसा मांगना शुरू किया, आत्मदेव से पैसा मांगना शुरू किया। तो इस प्रकार से आत्मदेव बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि धुंधुकारी बार बार आके उनसे पैसा मांगता। तो एक दिन धुंधुकारी ने आत्मदेव से कहा कि अगर आप मुझे इतना पैसा नहीं लाके दोगे तो मैं कल आकर पूरा ये सारा घर पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो आत्मदेव एकदम घबरा गए। उसी समय गोकर्ण आत्मदेव के घर पे आए, और गोकर्ण ने कहा कि क्या हुआ पिताजी, ये आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो आत्मदेव ने गोकर्ण को सारी बात बताई धुंधुकारी के बारे में, कि धुंधुकारी बहुत खराब चरित्र का बच्चा है, वो बहुत खराब खराब करता है। तो इस प्रकार से धुंधुकारी, आत्मदेव बहुत परेशान हुए। तो गोकर्ण ने कहा कि देखिए, आपने अपने पिता का सारा फर्ज निभाया, अभी आप ये परिवार को छोड़कर चले जाइए, ऐसे भी आपका सब कर्तव्य पूरा हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन भगवान का नाम के लिए मिला है, इसीलिए अब आप जंगल में जाकर भगवान का नाम जप करिए, अपना मनुष्य जीवन सार्थक करिए। तो इस प्रकार से आत्मदेव ने गोकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। तो दूसरे दिन जब धुंधुकारी घर पर आया, तब धुंधुकारी ने कहा, पिताजी कहाँ गए? तब धुंधुकारी ने अपनी माँ धुंधुली से बोला कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे पैसा चाहिए। तो धुंधुली ने बोला कि मैं कहाँ से पैसा दे सकूं, मेरे पास तो कोई पैसा, मेरे पास तो बिल्कुल भी धन नहीं है। तो धुंधुकारी ने बहुत आतंक, घर में बहुत आतंक फैलाना शुरू किया। और ये सब देखकर धुंधली बहुत परेशान हो गई, और एक दिन इतनी ज्यादा परेशान हो गई तो उसने जाके पास में कुआं में जाकर कूद गई और मर गई। बोले कि बहुत, ये तो मेरा संतान तो एकदम बदमाश निकला, कपटी निकला। तो वो जाकर परेशान होकर धुंधली कुएं में जाके कूद गई। तो इस प्रकार से
आत्मदेव वन में जाकर भगवान का नाम जब जब करते हुए भगवत धाम चले गए, और धुंधुली जो है वो कुएं में जाके कूद गई, तो बचा कौन? धुंधुकारी। और गोकर्ण जो था वो भी जंगल में चला गया, वो बोला मेरी क्या आवश्यकता, मैं तो भगवान का नाम जप करता हूँ। तो इस प्रकार से धुंधुकारी अकेला घर में रह गया। तो ऐसे करके धुंधुकारी ने बहुत खराब काम करना शुरू किया, बहुत सारी स्त्रियों को घर में लेकर आ गया और खराब खराब करने लगा। तो और फिर चोरी करने लगा, क्योंकि पैसा धन नहीं था उसके पास, तो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, दूसरों को मारने लगा, धन के लिए दूसरों को मर्डर करने लगा। फिर एक दिन उसने राजा के महल में जाकर बहुत बड़ा धन की चोरी की। तो ये सब, और घर में बहुत सारी स्त्रियों को रखने लगा। जब स्त्रियों को पता चला कि धुंधुकारी ऐसे चोरी करके, राजा के महल में चोरी करके हमें पाल रहा है, तो धुंधुकारी को, तो उस जो स्त्रियां थी उन्होंने लगा कि अरे अभी राजा के सिपाही आकर हमें ही पकड़ेंगे, क्योंकि धुंधुकारी तो घर में है नहीं, अभी राजा के सिपाही आएंगे हमें पकड़ेंगे। इसीलिए सभी स्त्रियों ने सोचा कि हम धुंधुकारी को रात में मार डालेंगे, जान से खत्म कर देंगे, क्योंकि स्त्रियां भी ऐसे ही थी, स्त्रियां खराब चरित्र की थी। तो सभी स्त्रियों ने रात में प्लान बनाया कि हम लोग धुंधुकारी को खत्म कर देंगे, और फिर सभी स्त्रियों ने रात में धुंधुकारी को मार डाला, और उसी घर में जहां मारा था उसी घर में गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया। अभी धुंधुकारी को मार डालने से धुंधुकारी क्या बन गया? धुंधुकारी घोस्ट बन गया, भूत बन गया आत्मा। धुंधुकारी। हाँ, धुंधुकारी भूत बन गया। अभी धुंधुकारी उसी घर में रहता था, ठीक है, तो धुंधुकारी इसी साइड में, तो अभी धुंधुकारी उसी घर में रहने लगा। नेक्स्ट साइड, ठीक है। अभी एक दिन गोकर्ण एक दिन गोकर्ण एक दिन गोकर्ण वहां पर ऐसे ही जंगल से सोचे कि एक बार मैं अपने घर जाके आता हूँ। तो घर आए तो देखे कि कोई भी नहीं है घर में, तो वहां पर घर में उन्होंने थोड़ा समय रेस्ट किया, रात हो गई तो सो गए। तो रात में जब सोए तो उनको लगा कि कुछ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है। तभी उनको आवाज आई, बोला मैं धुंधुकारी हूँ। तो अब गोकर्ण ने देखा कि अरे धुंधुकारी, तो बोले हाँ। लकड़ी। टाइम अप। भाई 6 बज गए। मैं तो अभी 6 बज गए। Mother, your voice is breaking. Mati, your voice is not coming. Yes, Mataji, your voice is not coming. हरे कृष्णा। ओके, सो धुंधुकारी ने, दिखाई दे रहा है? ओके, तो धुंधुकारी ने गोकर्ण को सारी बात बताई कि अरे देखिए मेरे को सब स्त्रियों ने मार डाला, और इसी घर में मुझे गड्ढा खोद के गाड़ दिया, इसीलिए मैं क्या बन गया? मैं भूत बन गया, इसीलिए अभी आप मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण ने तुरंत अपने भाई की दुख समझा और तुरंत गया में जाकर श्राद्ध किया, पिंडदान किया, अपने भाई के नाम से दान वगैरह किया। पर जब वो गोकर्ण सोचे चलो अच्छा अभी मेरे भाई का उद्धार हो गया, तो वापस सब श्राद्ध क्रिया करके गोकर्ण घर पर आए और वापस सो गए। तो जब रात में उठे तब उन्होंने वापस से धुंधुकारी की आवाज आई। तब गोकर्ण ने धुंधुकारी से कहा कि अरे मैंने तो सब श्राद्ध क्रिया सब कुछ कर दिया, अभी भी तुम प्रेत योनि में हो, इसका क्या कारण है? तो धुंधुकारी ने कहा कि नहीं नहीं, आप ये सब से मेरा उद्धार नहीं होगा, आप कुछ और करो। तब गोकर्ण ने सूर्य देव की उपासना की, सूर्य देव को बुलाया और सूर्य देव से प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं ताकि मेरे भाई का उद्धार हो सके। तब सूर्यदेव ने गोकर्ण से कहा कि आप 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा करो और सभी गांव वासियों को बुलाओ, और जब 7 दिन की भागवत कथा संपन्न होगी तब आपका भाई धुंधुकारी का उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा सुनकर गोकर्ण ने सारे गांव वासियों को बुला भेजा कि सब लोग आइए, कल से श्रीमद् भागवतम 7 दिन की कथा प्रारंभ होने वाली है, और धुंधुकारी को
एक बांस के लकड़ी में उसको कहा कि बांस की लकड़ी में तुम घुस जाओ और वहां रहकर तुम सुनो। तो ऐसे करके धुंधुकारी बांस की लकड़ी के अंदर घुस गया। वो तो प्रेत था, ऐसे भी भूत था, तो बांस की लकड़ी के अंदर घुस गया और 7 दिन सुनने लगा। तो एक दिन जैसे जैसे एक दिन गोकर्ण सुनाते, तो एक दिन एक एक बांस, जो बांस की जो लकड़ी थी उसमें 7 लाइंस थे। तो जैसे ही एक दिन खत्म होता तो एक लकड़ी टूट जाती, फिर दूसरा दिन खत्म होता तो दूसरी लकड़ी टूट जाती, फिर तीसरा दिन, ऐसे 7 दिन के बाद पूरी बांस की लकड़ी टूट गई और वहां से एक बहुत ही सुंदर एक दिव्य पुरुष निकला। वो कौन था? धुंधुकारी। धुंधुकारी ने 7 दिन भागवत की कथा सुनकर उसका पूरा उसको प्रेत योनि से मुक्त हो गया। हमारे तो और बैकग्राउंड नहीं आता है। बता दे। हरे कृष्णा। और वो एकदम प्रेत योनि से मुक्त हो गया और एक दिव्य पुरुष बन गया और भगवत धाम उसका उद्धार हो गया और वो भगवत धाम जाने के लिए तत्पर हो गया। तो उसने, जो दिव्य पुरुष था, उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और विष्णु दूत आए उसको भगवत धाम ले जाने के लिए। तभी गोकर्ण को विचार आया और उसने विष्णु दूत से पूछा कि आप सिर्फ भागवत कथा तो सभी ने सुनी है। चला गया। हरे कृष्णा। तो गोकर्ण ने कहा कि आपने कथा तो सारे गांव वासियों ने सुनी, आप सिर्फ धुंधुकारी को ही क्यों लेने के लिए आए? तब विष्णुदूत ने कहा कि कथा तो सभी ने सुनी, पर कुछ लोग कथा में इधर उधर देख रहे थे। ठीक है, कुछ लोग कथा में सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि कौन आया है। ध्यान से सुनी है उसी को हम लेकर आएंगे। इस प्रकार विष्णुदूत ने सिर्फ धुंधुकारी ने ध्यान से भागवत की कथा सुनी, इसीलिए धुंधुकारी को लेकर ही गए। तो नेक्स्ट बार वापस से आत्मदेव ने कथा प्रारंभ की और फिर बहुत सभी गांव वासियों ने बहुत ध्यान पूर्वक भागवत की कथा 7 दिन सुनी और 7 दिन के बाद पूरे गांव वासियों को लेने के लिए विष्णुदूत आए और पूरा गांव भगवत धाम चला गया। तो इस प्रकार से इससे क्या सीखने को मिला? इससे इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? यस माता जी, हमें कोई भी भागवत गीता हमें ध्यान से सुननी चाहिए। हाँ आराध्य, क्या सुनने को मिला? क्या सीखने को मिला? माता जी, हमें भागवत गीता जो है हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए। यस वेरी गुड, हमें भगवत गीता भागवतम ध्यान से सुनना चाहिए। रेज योर हैंड्स। हार्दिक प्रसाद। यस, स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? व्हाट यू लर्न फ्रॉम मैं रेजन नहीं कर रही हूँ। माता जी, keep your hands down if you don't want to put your hands down. Hardik Prasad, you want to say something? Brihan. We should not lie. हरे कृष्ण माता जी, ये जो भागवतम है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी को सुनना चाहिए और एक बार इसको श्रवण करने से इसका इतना महत्व है कि कोई भगवत धाम भी जा सकता है। यस, जो लोग इसको ध्यान से सुनते हैं। यस, परीक्षित चौधरी। भागवत गीता या भागवतम को सुनने से हमारा हमारा जो अंदर बुरे कर्म होते हैं ना, वो हमें कभी सुनते ही नहीं है, बस हमारे अच्छे कर्म ही हमें सुनते हैं। ओके ओके, भक्ति। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। भक्ति, अनम्यूट योरसेल्फ। यस माता जी। Yes. What do you learn from this story? बाबा, कि हम अच्छी तरह से श्रवण करें भागवतम का, तो हम कभी भी हमें विष्णुदूत लेने आ सकते हैं और हम
गोलोक या तो फिर वैकुंठ जा सकता है, अच्छे धाम को प्राप्त कर सकता है। यस, कि हमें अभी हम लोग को 6 दिन और आज का दिन के बाद 6 दिन और भागवत को सुनना है, तो हम सभी लोग अटेंटिवली सुनेंगे। अगर हम लोग सब भागवतम को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। वो धुंधुकारी ने बहुत ध्यान से भागवतम सुना 7 दिन, इसीलिए विष्णुदूत आए ना लेने के लिए उनको भगवत धाम। तो हम सब लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं। We all want to go back home, back to Godhead, yes or no? Yes. Yes. माता So we जी। should, yes, we should all attentively hear Bhagavatam stories. Okay. Okay. So now we will. Okay. Now we have one Kahoot quiz game. So everybody see the link. You will share the link of the Kahoot quiz game. Let's see who is the winner. Everybody see in the mobile. We are sharing the link of Kahoot. Everybody has to click on the correct answer. माता जी, Yes. माता जी, Yes. Which link have you received? माता जी, Yes. Yes. माता जी, लिंक कहाँ है? Yes. I'm sharing. I'm sharing the link. I'm sharing the link. माता जी, चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं? Go back. You got the pin? Everybody got the pin? No, माता जी, चैट बॉक्स में सेंड कर देंगे? no, माता जी, the chat is disabled. माता जी, नो माता जी, Everybody got the pin? Got it. नो माता जी, In the chat, see? No, In the माता chat जी। section. Chat में देखिए, chat में. मिल गया? Chat में देखिए पिन आया. Ma'am, do we need to click on that link? यस माता जी, चैट में है। हाँ, ज्वाइन करिए. ज्वाइन करिए. आप ज्वाइन करोगे तभी गेम खेल पाओगे, नहीं तो नहीं खेल पाओगे. यस, जयंत से ज्वाइन, ध्रुवांश ज्वाइन, हरिप्रिया ज्वाइन. यस, एवरीबॉडी ज्वाइन. यस. थोड़ा पास करना, मेरे को दिख नहीं रहा। You are making them on screen. Anybody has problem in joining? नहीं। एक सेकंड रुको, बेटा पिन भी दिया क्या? Again, you are you say your रुको, मैं करूँगा। पिन ये रहा 971 और ऑप्शन भी है। और समय रुको, ये तो बताओ पिन क्या है? 971 Everybody join. ज्वाइन तो करने का 29 बड़ा plus 5, 30. All of you put the pin. 30 has joined. Rest of the पिन तो
Mataji, I am not able to join this quiz. Everybody join. Put the pin. माताजी 9, आ 7, रहा है 1, कि 6, बृहांत 5, को 7. मार दे ईसी और हाँ? निकनेम ऐसे, बृहांत को मार दे सी और निकनेम ऐसे आ रहा है। Yes, yes, Brihant is there. You are there. Brihant, you are there in the group. You have already joined. Rest of them join. All of you join. 27 join. What about rest? 28, 29. Mataji, Yes. Mataji, what is the I game am not pin? able to join this. Why? माताजी What is- गेम पिन क्या है? Why not able to join? मेरा उस साइड चलेगा। माती, कैन यू सी मी? I Mataji, I am not able to join the game. why beta? आई एम 30 have joined. 30 have joined. We are going to start the game soon. Everybody put the माताजी ऐसे आ रहा है, बृहांत कमांड यू आर इन सी योर निकनेम ऑन स्क्रीन। have joined. Nimai Rana, Bhakti, Rishikesh, Keshav, Brihant, Shubh, Jayant, Krishna, Daksh, Akshu, Aradhya, Krishiv, Devangi, Lakshmi, Keshav, Karamjeet, Nikunj, Nivriti, Lakshmi, अच्छा अब समझ आ रहा है। केशव, राजवीर, देवांश, हार्दिक, शुभ, आरू, परीक्षित, अभिलाष, यश, हरिप्रिया. These have joined. मेरा ये कैरेक्टर तो कोई बात नहीं, कोई बात बड़ी मुश्किल से तो हुआ है ना लाया है। इसमें अपना कौन सा फेस लगाना है कह रही है? डेट हो चुका है मम्मी क्लास। माताजी, देवांश अग्रवाल। माताजी स्टार्ट करते हैं। मम्मा नहीं तो First question. See the first question. मम्मा Number of नंबर verses in Srimad Bhagavatam are. Click. इसका कोई चल 18,000 मस्त अच्छा अगला भी तो आएगा ये आएगा बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी आ 20 correct. मैं करती हूँ ट्रांसलेट। कर दूं करेक्ट? माता जी करेंगी आंसर 14th नंबर पे हो। Haripriya first. Krishiv second. Third is Shubh. Fourth is Brihant. Next question. How many qualities of Lord Krishna are described in the first verse of Srimad Bhagavatam? How many qualities of Lord Krishna are described in the first verse of Srimad Bhagavatam? Four correct. Aru first, Rajvi second, Haripriya third. मैं नहीं आ रही मैं जा रही मैं नहीं पढ़ूंगा। Next. Be ready. In which Puran does the story of Gokarna come? Bhagavad Puran, Garud Puran, Vishnu Puran, Padma Puran. आंसर डाला तूने? मैं आंसर डाला गलत है पद्म पुराण। पद्म पुराण डाला है। झूठा पद्म पुराण डाला है। जा निकल गुरु के लिए झूठा है।
10 पद्म correct. यार देखो एकदम करेक्ट लिखा है। करेक्ट इनकरेक्ट। 10 correct. प्लीज Aru first, Parikshit second, Rishikesh third. चुप रहे। Next question. Be ready. What do we need in order to understand Srimad Bhagavatam? Intellectual mind, wealth, high academic degree, or pure heart? पेड़ हाटी कर है। इंटेलेक्चुअल माइंड चाहिए। मानिए 21 correct. Very good. A pure heart. Aru first, Parikshit second, Rishikesh third. Next question. Whom did Srila Vyasadeva offer his obeisances to? Parikshit Maharaj. Incorrect. Aru first, Parikshit second, Bhakti third. Where is Tungabhadra river located? Tungabhadra river. Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra. Who's there? 18 correct. आप 20th नंबर पे। Parikshit first, Bhakti second, Aru third. What is 12th canto of Srimad Bhagavatam compared to? Breast of Krishna, navel of Krishna, head of Krishna, thighs of Krishna. Please. 23 correct. Parikshit first, Bhakti second, Aru third. What has been compared to delicious fruit of the tree? Vedas, Srimad Bhagavatam. Correct. Oh, great. Bhakti first, Aru second, Rishikesh third. खुद करूंगा आप बात। Two questions left. Two questions left. How was Dundukari delivered from body? Gayatri mantra, मार्क्स आओ देखो 4000 first, Aru second, Rishikesh third. नंबर पे आ गए। Last question. Who is the author of Srimad Bhagavatam? व्यासदेव। Valmiki Muni, Sukadeva Goswami, Vyasadeva, Lord Krishna. इसका आंसर भी पता है। मैं बोलूँ Nineteen correct. दोबारा बालाजी की 2 पॉइंट्स। Third position is of Rishikesh. Rishikesh. Second is Aru. And first position goes to Bhakti. Bhakti is the winner. Second is Aru. Third is Rishikesh. Fourth is Parikshit. Very good. Clap for Bhakti
भक्ति, ऋषिकेश, आरू। Okay, so Bhakti is the winner of today's Kahoot quiz. Bhakti, Aru, and Rishikesh. Where is Bhakti? Raise your hand. Where is Bhakti? Raise your hand. Aru? Where is Aru? Yeah, very good. Arna Bandari. Okay, third is Rishikesh. Where is Rishikesh? Oh, Rishikesh. Okay, I know you. Okay, so clap. Everybody say Hari Bol 3 times for them. Hari Bol. Say Hari Bol for them, for the winners. Everybody say Hari Bol for them. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. हरी बोल। So the winners will get their gifts. Those who are in BGIS, they will get their gifts personally, and those who are living far, they will get their gifts through online. They will get their gifts through Amazon. Okay. Okay, Hare Krishna. So we'll meet tomorrow at the same time at 5 o'clock with some other activity and some other. Huh? Okay, Hare Krishna. To have such quizzes every day. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता। Hare Krishna, Mataji. माता जी, आई एम लीविंग द क्लास।